Dear students, I am your physics teacher मोहम्मद इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली एग्जाम्पल थी मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। पहली एग्जाम्पल थी मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि मास m जो स्प्रिंग के एक सिरे के साथ बंधी हुई थी वो पहले मेन पोजीशन O पर थी, और जब हम उसको पोजीशन O से पोजीशन A पर ले जाकर हमने छोड़ दिया तो वो स्प्रिंग की रेस्टोरेंट फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू हो गया, और इनर्शिया की वजह से O पर रुकने की बजाय वो एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ चला गया। और इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब जिस्म एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है और मेन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाती है, और जब वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर ज़ीरो हो जाती है। दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी थी मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल। इस एग्जांपल में भी हमने देखा कि जब जिस्म मेन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A और B की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन A और एक्सट्रीम पोजीशन B से मेन पोजीशन O की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है। इसी तरह मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमने ये देखा कि जब बॉब मेन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन A या एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है, जबकि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। इन तीनों एग्जांपल से ये जाहिर होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में या ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट्स इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो द स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। The simple harmonic motion occurs when the acceleration, नेट फोर्स की बजाय acceleration आप यहाँ पे कर सकते हैं, directly proportional to the displacement from the main position and is always directed towards the main position is called simple harmonic motion. So the students, the definition of simple harmonic motion is the oscillatory motion or to and fro motion in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. The acceleration produced in the body is directed towards the mean position and directly proportional to the displacement is called simple harmonic motion. So the student, first we learn the definition of simple harmonic motion, उसके बाद next definition, important features of simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा
a body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position, which is called its mean position. Its acceleration is always directed towards the mean position. The magnitude of acceleration is always directly proportional to the displacement from the mean position, such as the acceleration will be 0 at the mean position while it will be maximum at the extreme position. Its velocity is maximum at the mean position and 0 on the extreme position. So this is the question, define simple harmonic motion and its important features. Now the students, question number 2, explain the terms related to the simple harmonic motion. So first definition is vibration. One vibration round trip a vibrating body about a mean position is called vibration. Time period. The time required to complete by a vibrating body. The time period by vibrating body to complete one vibration is called its time period. Frequency. The number of vibration per cycle of a vibrating body in 1 second is called its frequency, and this frequency is reciprocal of the time period, such as f equal to 1 over t. Amplitude. The maximum displacement of a vibrating body on other side from the mean position is called to amplitude. So the students, आज हमने 2 क्वेश्चन पढ़े. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स. तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद इसके 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो फर्स्ट डेफिनेशन है वाइब्रेशन. तो एक पूरा चक्कर एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक और वहाँ से दोबारा पहली एक्सट्रीम पोजीशन तक, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स वन वाइब्रेशन. टाइम पीरियड. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन per cycle of a vibrating body in 1 second is called its frequency. It is reciprocal to the time period, such as f equal to 1 over t. Amplitude. Amplitude is the maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position. यानी मेन पोजीशन से लेकर एक एक्सट्रीम पोजीशन तक उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है. सो द स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स फीचर्स. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स रिलेटेड टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन. वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. ये दोनों क्वेश्चन आपने कॉपी पर लिखने भी है और इसको अच्छी तरह याद भी करना है. यही आपका होमवर्क है.